Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you all to my YouTube channel. Friends, today we will discuss unit number 7, Subhasit Kusumani. Today we will discuss the first 4 verses of Subhasit Kusumani. Look here, this is the introduction of the unit. Sushtu Bhasitam Subhasitam means that which is said well is Subhasit, means epigram. Inexhaustible treasures of epigrams is found in Sanskrit. The literature believed that Sanskrit literature believed that Pruthivyam Trini Ratnani, there are the 3 gems in this world, Jalam, Annam and Subhasitam. Water, food and wise sayings. As water and food are inevitable means essential, which is required, inevitable for mankind, so is epigram also inevitable. So water, food is required for human life. Like that, these wise sayings, this epigram Subhasit is also required for mankind. Sanskrit epigrams introduce not only Indian culture or people, but they also introduce human culture. Hence, they guide every human life beyond the place and time. It is an undertaking to establish value in human life. Like a friend, these epigrams help in character building of a person. These epigrams also supply beautiful illustrations of the fact that how can a man experience happiness and joy by following things which are worthy to be grasped in life. It is special feature of epigram to convey ocean of wisdom in a small vessel. 7 epigrams are presented here, which beautifully describe the value of good people's words, usefulness of trees, acquisition of virtues with efforts, loss caused by unstable minded person, means of examining man, worth following virtues of great person, and nature of resolute person are presented here, with a view to impart moral values, good qualities and life skills in students who are citizens of tomorrow. These Subhasitas are presented here. So now one by one we will discuss the different verses. Today we will discuss the first 4 verses of unit number 7, Subhasit Kusumani. Now look here, this is the first slok of unit 7, Subhasit Kusumani. First word, Sabdihi. Sabdihi means good man, या तो good people. Leelaya means in a natural way. Prauktam, told, या तो said. Sila means stone. Likhitam aksharam, words written on. Sila likhitam aksharam means words written on the stone. Okay. Now asabdihi, this is the opposite word of sabdihi. Asabdihi means wicked people, bad men. Sapathe na api, even after taking oath.
प्रतिज्ञा लेने के बावजूद, जले इन द वाटर, लिखितम अक्षरम वर्ड्स रिटर्न, जले मीन्स in the water, words written on the water, okay, on the surface of water it means. So I am going to translate this. Look here, we will start from here. Words spoken by good people. Once again I repeat, words spoken by good people in a natural way. Words spoken by good people in a natural way are the words written on the stone. Words spoken by good people in a natural way are the words written on the stone. But the words spoken by wicked people, even after taking oath, are the words written on the water. ओके, तो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि गुड पीपल द्वारा कहे गए वर्ड्स, गुड पीपल ने जो भी कहा है वो कैसे कहा है, इन अ नेचुरल वे, ऐसे ही कह दिया हो, ऐसे ही बातों बातों में कह दिया हो। तो गुड पीपल द्वारा कहे गए वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं, स्टोन के ऊपर लिखे गए वर्ड्स की तरह है। क्योंकि स्टोन के ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं, यानी पेन से या चौक से नहीं, पर कार्विंग यानी कोतरणी કરીને જે લખવામાં આવે, तो स्टोन के ऊपर जो लिखे गए वर्ड्स है वो मिटते नहीं है, वो जल्दी से मिट जाते नहीं है। तो गुड पीपल के वर्ड्स कैसे है, स्टोन के ऊपर लिखे गए वर्ड्स जैसे है। पर विकेड पीपल द्वारा कहे गए वर्ड्स, अगर विकेड पीपल प्रतिज्ञा ले, वो प्रतिज्ञा लेकर कुछ भी बोले, हम कभी कभी माँ कसम नहीं खाते कि माँ कसम मैं जो कह रहा हूं वो सच है। तो ऐसे लोग जो विकेड पीपल है वो प्रतिज्ञा लेने के बाद भी कुछ कहते हैं, तो उनके वर्ड्स कैसे हैं, पानी के ऊपर लिखे गए वर्ड्स जैसे है। पानी के ऊपर आप जानते हो कि कभी लिखा जाता नहीं है, और कुछ भी हम लिखते हैं वो तुरंत मिट जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें गुड पीपल द्वारा, सत्पुरुष द्वारा कहे गए वर्ड्स को हमेशा याद रखना चाहिए, और विकेड पीपल द्वारा प्रतिज्ञा लेने के बाद भी कुछ कहा जाए तो भी हमें वह सुनना चाहिए नहीं, याद रखना चाहिए नहीं। ओके, अभी अभी आपने जो फर्स्ट श्लोक देखा उसमें 2 ग्रामर के पॉइंट है। मैंने श्लोक यहां रब कर दिया है क्योंकि मैं आपको वो ग्रामर के पॉइंट समझा सकूं। सो लुक हियर, फर्स्ट वर्ड था लीलया, लीलया। ओके, तो इसका जो मेन वर्ड है वो है लीला, लीला। सो लीला इज अ आई एंडिंग फेमिनाइन जेंडर। ये लीला जो वर्ड है वो आई एंडिंग फेमिनाइन जेंडर है। ओके, तो आप आई एंडिंग फेमिनाइन जेंडर का 9th स्टैंडर्ड में टेबल सीख चुके हो, वो था साला का फॉर्म। तो साला का जो टेबल था, बाला का जो टेबल था 9th स्टैंडर्ड में, हमें उसे याद करना है। तो वहां पर इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर तृतीया एक वचन में ऐसा वर्ड दिखाई देगा। अगर साला होगा तो सालया होगा। सीता के फॉर्म याद करोगे, आ एंडिंग फेमिनाइन जेंडर, तो सीतया। बाला होगा तो बालया। तो ऐसा जो वर्ड है वो कैसा है, लीलया, इन तीनों जैसा वर्ड है। सो इट इज अ इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर। आप टेबल देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर तृतीया एक वचन में ये सारे वर्ड सेम दिखाई दे रहे हैं, बराबर। तो आ एंडिंग फेमिनाइन जेंडर तृतीया एक वचन में ऐसे ही लिखा जाता है। ओके,
सो इट इज अ तृतीया एक वचन। दूसरा वर्ड है जले। जले, मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड है जल। जल अ एंडिंग, तो जले मीन्स इन द वाटर। इंग्लिश में आप बोलोगे तो इन आया है, ओके। और ये जले जैसा वर्ड आप जल अ एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर में देखोगे, अ एंडिंग न्यूट्रल में भी देखोगे, तो भी जले जैसा वर्ड आपको दिखाई देगा। राम होगा तो क्या होगा? रामे। बाला होगा तो बाले। बाला के फॉर्म होंगे तो बाले आएगा। राम का टेबल होगा तो रामे आएगा। तो ये जो है वो है सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन में इस तरीके ही लिखा जाता है, ओके। सो अ एंडिंग सप्तमी एक वचन, ओके। नाउ श्लोक नंबर 2। सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम न अस्ति छाया के निवार्यते, ओके। Now the word meanings, we will start from here. Mahavruksha, maha means huge and vruksha means tree. Huge tree, samanvitaha, full of fruits and shade. I repeat, a huge tree full of fruits and shade. सेवितव्यो, तव्य मैंने आपको समझाया था। तव्य इज सफिक्स ऑफ पार्टिसिपल, इट इज अ विध्यर्थ कृदंत, और जहां पर विध्यर्थ कृदंत आए वहां पर हमें शुड वर्ड यूज करना है। तो सेवितव्यो शुड बी सर्व्ड। सेविता मीन्स SERVED, सर्व, हमें सेवा करनी चाहिए। वंस अगेन आई रिपीट, अ ह्यूज ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स एंड शेड should be served। फल और छाया से आच्छादित एक महान वृक्ष की हमें सेवा करनी चाहिए। यदि इफ देवात मीन्स बाय चांस, फलम न अस्ति, फ्रूट इज नॉट देयर, छाया के निवार्यते मीन्स प्रिवेंट। हु कैन प्रिवेंट द शेड? इफ बाय चांस fruit is not there, who can prevent the shade? Okay, once again, a huge tree full of fruits and shade should be served। If by chance fruit is not there, who can prevent the shade? Okay, अगर हिंदी में समझाऊं तो यहां पर ऐसा कहा गया है कि एक विशाल वृक्ष है जो फ्रूट और छाया से लदा हुआ है या तो आच्छादित है, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा करनी चाहिए? क्योंकि बाय चांस अगर उस पेड़ पर फल नहीं होंगे तो उसकी छाया, जो हमें वो छाया देता है वृक्ष, उसको कौन रोक सकता है? वृक्ष की छाया को तो कोई चुरा के भी नहीं ले जा सकता। अगर फल है तो वो कोई तोड़ के ले जा सकता है, पर उसकी छाया को तो कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, कोई उसको वहां से हटा नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर ऋषि मुनि हमें ऐसा समझा रहे हैं कि हु कैन प्रिवेंट द शेड, ओके, सो दैट वी शुड सर्व द ह्यूज ट्री। यहां पर यह समास है। यह समास किस लिए है? व्हाई इट इज अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू रूल्स। महा वर्ड इज देयर। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नाउन के आगे, नाउन, ये नाउन है, वृक्ष नाउन है, ओके, उसके आगे अगर महा वर्ड आपको दिखाई दे देन इट इज अ कर्मधारय समास, ओके। यहां तव्य है, इसीलिए ये जो वर्ड है वो क्या है? विध्यर्थ कृदंत। उसी तरह यहां पर देवात है, देवात,
तो मेन वर्ड क्या है? देव। देव मीन्स अ एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, देव अ एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर। तो आप 9th स्टैंडर्ड में देव का टेबल देखोगे आप, तो वहां पर आत वर्ड कहां पे आता है? ऐसा देवात। तो आपको वह पंचमी एक वचन में मिल जाएगा। राम हो तो रामात, उसी तरह बाला हो तो बालात। इसका मतलब इंग्लिश में फ्रॉम द गॉड। ऐसा अगर सेपरेट किया है इसीलिए फ्रॉम द गॉड होता है, पर यहां देवात फलम पूरा वर्ड है, यानी बाई चांस यहां पर यूज हुआ है। पर देवात आत वर्ड हमें इतना देखना है कि आत वर्ड पीछे आया, इट इज सो दैट इट इज अ पंचमी एक वचन। ओके, नाउ श्लोक नंबर 3। आरोप्यते शीला शैले यत्नेन महत्ता यथा, निपात्यते क्षणेनादः तथा आत्मा गुण दोषयोः। ओके, न्यू वर्ड्स। यथा मीन्स एज, शीला पहले भी ये वर्ड आ चुका है। शीला मीन्स अ बिग स्टोन, शैले मीन्स ऑन द माउंटेन, यत्नेन महत्ता विथ ग्रेट एफर्ट्स, आरोप्यते is placed, placed, is placed. So the translation of this line as a big stone is placed on the mountain with great efforts. I repeat, as the big stone is placed on the mountain with great efforts, निपात्यते क्षणेनादः, within a moment it is made to fall down, within a moment it is made to fall down, तथात्मा similarly soul in the matter of गुण दोष, in the matter of vices and virtues. ओके, तो ये इसका ट्रांसलेशन है। अब पोएट यहां कहना क्या चाहते हैं? यहां पर ऐसा कहा गया है कि जैसे एक ह्यूज स्टोन को पर्वत के ऊपर ले जाने में महत्ता यत्न, with great efforts we can take the stone on the mountain. Okay, I repeat, with great efforts we can take the huge stone on the mountain, but निपात्यते क्षणेनादः, उसको ऊपर से गिरने में सिर्फ एक क्षण लगती है। किसी बड़े पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन उसको ऊपर से गिरने में सिर्फ एक क्षण लगती है। उसी तरह हमारी आत्मा के बारे में भी है। आत्मा यानी हम खुद, हमारे बारे में हमें कैसा ये फॉलो होता है? हमारे गुण और दोष की तरह। अगर हम गुण की बात करें तो हम गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, बराबर। अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम बहुत ही ऊपर तक उठ सकते हैं, ऊंचा जा सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक भी छोटा सा गलत काम कर दिया तो हम जो ऊपर तक पहुंचे हैं उससे नीचे गिरने में हमें क्या लगेगा? सिर्फ एक क्षण लगेगी। एक ही क्षण में हम ऊपर से नीचे तक गिर जाएंगे। ओके, सो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए ऊपर उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, सो दैट वी कैन we can reach the highest level. यहां पर यह समास दिया हुआ है, गुण दोष, गुण च दोष च। यहां दो चीज की बात की है, गुण वाइसेस एंड वर्च्यूज।
ये वाइसिस एंड गुण मीन्स वर्च्यूज। तो यहां पर ऐसा कहा गया ये जब दो चीजों की बात की हो तब वो कौन सा समास कहलाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। और ये कौन सा समास है, इट इज अ इतरेतर द्वंद्व। मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया कि इतनी इतनी बातें हो, एनिमल्स के नाम दिए हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तब वह समाहार द्वंद्व कहा जाता है। पर वो सारी चीजें ना दिखाई दे तो वो क्या हो सकता है, इतरेतर द्वंद्व। ओके, सो दिस कंपाउंड इज अ इतरेतर द्वंद्व। नाउ श्लोक नंबर 4। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरः। क्षणे रुष्टः, रुष्टः मीन्स एंग्री, so angry in a moment, and tuštah means satisfy, satisfy in another moment. One who is angry in a moment and satisfied in another moment. रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, sometime satisfied, sometime angry, and sometime satisfied. Once again I repeat, one who is angry in a moment and satisfied in another moment, sometime satisfied and sometime angry. अव्यवस्थित चित्तस्य, अव्यवस्थित चित्तस्य means having disturbed mind. प्रसादः, प्रसादः means grace, जिसकी कृपा हम लेते हैं वह। प्रसादः means grace, अपि also भयंकरः, terrible. So poet says that one who is satisfied in one moment, one who is angry in a moment and satisfied in another moment. So sometimes satisfied and sometimes angry. Grace of such type of person having disturbed mind is also terrible. Once again I repeat, grace of such type of person having disturbed mind is also terrible. ऐसे लोगों की कृपा भी कैसी है, ऐसे लोगों की कृपा हम पर जो हो वो कैसी है, भयंकर है। तो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कभी खुश हो जाता है तो कभी नाराज हो जाता है। एक क्षण में खुश होते हैं और दूसरी क्षण में तुरंत नाराज हो जाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा ज्यादा होता होगा, कभी कोई एकदम खुश हो जाता है और दूसरी क्षण में नाराज हो जाते हैं। ऐसे मित्रों से हमें फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो यहाँ पर ऐसा कहा है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हम पर कोई कृपा करे, हम पे कोई कृपा करे, या तो फिर हमें हेल्पफुल हो, ऐसे लोगों की मदद भी हमें लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद भी कैसी होती है, ऐसे लोगों की हेल्प कैसी होती है, भयंकर होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर listening this video. Today we have discussed 4 verses and remaining 3 verses we will discuss in next period. पहले जाने से पहले एक श्लोक, एक सुविचार आपके लिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे, खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच।